कैसे हैं सौरभ? बढ़िया बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू। जब लोग आ जाएं तब हम लोग शुरू करते हैं फिर। Yes, 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 sir. Within a 5 minutes, sir, we will try to start. ओके। Good afternoon, all of you. Firstly, I would like to introduce our speaker, today's speaker, Dr. Hiralal IS. So I would like to give some glimpses about Dr. Hiralal. So Dr. Hiralal is completed his BTech in Electrical Engineering from GB Panch University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttaranchal in 1990. And after that, he has a master's degree in public administration from Maxwell University, USA. So after that, sir has vast experience in administration from 1994 onwards. So already taking responsibility as Special Secretary Culture and Directors Culture, Managing Directors, Special Secretary Rural Development, Regional Food Control Pajawar Division, Special Secretary Labor and Special Secretary Home Guard. And sir has also served as a district magistrate Banda for 1.5 years. He received many awards for his innovative work and art of working style. Currently, he is Additional Mission Director, National Health Mission, Uttar Pradesh, and Additional Project Director, Uttar Pradesh State AIDS Control Society, Lucknow. He is having outstanding record for successful running administration in different position and location using IT in field service for providing good governance to public. He acts like a social leader. He enjoys supporting the poor, helpless, and needy as a hobby. His egoless, simple style and to contact and help needy to food strength. He is self-motivated and energetic person who make continuous efforts to work for transformation of social and economic growth of society. He likes things and does things differently. He is having deep understanding and clear vision of how social economy transform can be achieved, especially mobilizing education, health, and agriculture sector with overall development of all parts of society with ability to move together. He mostly adopt formula of no cost or low cost. So that time availability of resources funded and participation involvement of stakeholders, he know all tricks and techniques how to associate and hold all stakeholder all along.
He is a plan to do one more research to keep in touch with reading and writing. Sir has already honorary mentor of Model Gaon. So Model Gaon concept is also currently praised by the Niti Aayog. So Model Gaon on is his celebrated development experiment in Banda as a district magistrate. Model Gaon is the brainchild of Dr. Hiralal. Model Gaon is a non-profit initiative which aims to transform village, Indian village into model village. The vision of this project is to work towards the holistic development of the village. This will be achieved by setting an agenda for rural development through village manifesto. Develop, develop change maker who will lead the transformation and handhold FFC empowering a small and marginal farmer to convert agri into agribusiness. Model Gaon is playing a significant role in transforming the thought process of farmer and village on whole. So these all about Dr. Hiralal sir. So I would like to request sir, please start your today talk and most welcome in our department and the School of Engineering and Technology, Sarda University, Greater Noida, and you will give your valuable time in your very busy schedule. Thanks, sir. तो हम लोग बात शुरू करें क्या? Yes, yes, yes. Sir, please. अच्छा, तो खेती की बात अंग्रेजी में हो तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसको हिंदी में ही बात करते हैं, तो इट विल बी मोर बेटर रादर देन स्पीकिंग। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मॉडल गांव के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मुनीश जी, वो भी हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट में इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, व्हाट इज मॉडल गांव, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड and all that. Thereafter Munish ji will take up all the queries and questions because he is the expert of the model gaon and he is retired CGM from NABARD, so he is having a rich experience of 40 years. I am nowhere before him as compared to the knowledge of the rural development and allied things. राघवेंद्र? Yes, sir. राघवेंद्र? Yes, sir. हाँ, अभी मैं तो देखिए मॉडल गांव, हाँ मॉडल गांव को जो है समझने की जरूरत ये है, ये मॉडल गांव आज के डेट में सबके दिल और दिमाग में, गांव, मैं गांव की बात करता हूँ, गांव आज के डेट में सबके दिल दिमाग पे छाया हुआ है। क्यों? इसलिए छाया हुआ है, जिस शहर में हम लोग रोजी रोटी कमाने गए थे, धनी बनने गए थे, अच्छा लाइफ जीने गए थे, जब मुसीबत आया तो लोगों को गांव में आना पड़ा और गांव ने बुरे वक्त में गांव ने सहारा दिया। मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरे बहुत सारे शहर के लोग हैं जो 3 महीना कोरोना में गांव ही रहे, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर अच्छा था, फूडिंग अच्छी थी, जिससे कि वो कोरोना से लड़ सके। तो ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आए हैं, इस कोरोना ने इसका वैल्यूएशन बहुत बढ़िया कर दिया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम कह रहे हैं हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। हम डेवलप कंट्री कैसे बन जाएंगे जब 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, और वो 70% लोग जब तक डेवलप नहीं होंगे हम डेवलप्ड बन ही नहीं सकते हैं। तो गांव जाना और गांव की तरफ देखना और गांव के बारे में सोचना, ये हमारी मजबूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि 5 तारीख को अभी इन्वायरमेंटल डे था, क्या इन्वायरमेंट डे था, तो यूनाइटेड नेशंस ने जो इस बार का थीम लिया है उसका है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हमारा जो इकोसिस्टम है, जल जंगल और जमीन, इसको हम लोगों ने इतना सताया, इतना डैमेज किया कि अब वो हमारे किसी भी फर्दर गुस्ताखी को बर्दाश्त करने के पोजीशन में नहीं है। तो हमें फर्दर इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और जो खिलवाड़ हमने करके जो सताया है उसकी भरपाई करना है, रिस्टोर करना है। तो मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, हम इसको एक पीपीटी के, मैं पहले चाहता हूँ एक मैंने वीडियो हम लोग बनाए हैं, उस वीडियो से एक ग्लाइड पेज मिल जाए 2 मिनट का, तो उससे आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा। देन वी विल डिस्कस द मॉडल गांव विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। वी डू हैव अ पीपीटी। हाँ, जरा वीडियो चलाओ राघवेंद्र जी। राघवेंद्र,
राघवेंद्र। ये सच है, हमारा भारत देश गांव में बसता है, लेकिन एक सच ये भी है, हमारा देश ही हमारी देह है और हमारा गांव हमारी आत्मा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव में रोजगार के साधन कम हुए, लोगों की आय घटी, हमारे लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों गए? सोचने का विषय है। आज जरूरत है गांव को शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ बनाने की। मॉडल गांव, विलेज मैनिफेस्टो उसी बदलाव की बात करता है। खेती किसानी को एक व्यवसाय में बदलकर ग्रामीणों को विकसित करके जागरूक करना है। उपज का सही दाम, हर हाथ को काम, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जमीन, बेहतर सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए मॉडल गांव का हिस्सा बने। जल जंगल जमीन को, अगर एक जमीन को छोड़ दीजिए तो पेड़, पानी, जल और जंगल, ये आम आदमी की जरूरत है। पानी आम आदमी की जरूरत है और जो पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, वो हर आदमी की जरूरत है। हर गांव में अच्छे लोग हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। ऐसे लोगों का हम लोग चयन करेंगे और उनको जहां भी गांव में अच्छा काम हुआ वहां भेजेंगे। उन्हीं सब लोगों के कंट्रीब्यूटरी पैसे से भेजेंगे, उनके दिल और दिमाग को खोलेंगे, जिससे कि वो देख के सीख सकें कैसे दुनिया में गांव में बदलाव आया है और मॉडल गांव बने। मॉडल गांव एक ऐसी सोच, एक ऐसी व्यवस्था जहां हर घर, हर देहरी खुशहाली लाएंगे, हम सब मिलके अपना गांव बनाएंगे। मॉडल गांव, ग्रामीण विकास, एक नई सोच, एक नई पहल। ओके, थैंक यू। तो ये देखिए हम लोगों ने एक वीडियो बनवाया है कि मॉडल गांव को संक्षिप्त में थ्रू वीडियो बताने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मॉडल गांव का कि मॉडल गांव क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है। राघवेंद्र पीपीटी स्टार्ट करो। तो इसके लिए हम लोग पीपीटी पे बात करेंगे जिससे कि आप लोगों को सिस्टमेटिकली समझने में आ जाए। और चैट में सारा डिटेल अभी डलवा दूंगा मैं, राघवेंद्र डाल देना सारा कैसे कनेक्ट करें और सारी चीजें। पीपीटी से शुरू करो। तो ये जो मॉडल गांव है, मॉडल गांव बेसिकली एक आइडिया है और ये आइडिया हम लोगों ने जमीन पे जो आउटकम मिला उसको सम अप करके बनाया है। ये बॉटम अप अप्रोच है, ये कहीं से ऐसा नहीं है कि टॉप डाउन वाला अप्रोच है जो कि दिल्ली से चले और लखनऊ या गांव में जब पहुंचे तो वो लागू ना हो पाए। तो इसका जो अप्रोच, मतलब ये जो मॉडल गांव है, ये हमारा बॉटम अप वाला अप्रोच है। ये देखिए हम लोग का एक लोगो है और हम लोग मॉडल गांव को कहते हैं एक नई सोच है, एक नई पहल है। और हमारा नारा है चलो गांव की ओर। मतलब अभी जैसे लोग बीमारी में गांव की तरफ आए, उसी तरह से हमारा ये नारा है कि हमें गांव की ओर चलना चाहिए, रिवर्स करना है माइग्रेशन को। अभी क्या हुआ है इंडिया में, जो ये बड़े बड़े शहर भी बने हैं ना, पहले वो गांव थे, गांव से फिर छोटा कस्बा, बड़ा कस्बा, फिर मेट्रोपॉलिटन बने। तो मतलब क्या है, आज के 50 साल बाद, 50 साल पहले क्या था, आज के 50 साल पहले 80% आप कहिए या 90% आबादी गांव की थी। धीरे धीरे वो शहर में बदली, अब हम 70 पे पहुंचे हैं। तो ये हमारा जो सोच है कि हम, जैसे हम लोग अमेरिका में गए, अब हम लोग कहते हैं कि वहां का ब्रेन ले आइए यहाँ, उसी तरह से शहर का डीमाइग्रेशन करके हमें गांव की तरफ ले जाना है। इसका विजन है गांव का चौमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ये हमारा विजन है। और हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया गया और उसके माध्यम से, विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव में विकास का एजेंडा सेट करना है और जो गांव के अच्छे लोग हैं उनको चेंज मेकर के रूप में तैयार करके ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, ये हमारा मिशन है। विलेज मैनिफेस्टो
is to set up, to build up the environment for the development in the village. आगे नेक्स्ट सौरभ, अरे राघवेंद्र आगे चलो। तो ये जो ये मिशन है, ये देखिए हम लोगों ने इसको 3 हेड में किया है। पहला क्या है, हर ये जो हमारा पार्ट 1 है जिसको हम विलेज मैनिफेस्टो कहते हैं, कि हर गांव में गांव वालों को विलेज मैनिफेस्टो से जोड़ना। अभी हम विलेज मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे कि विलेज मैनिफेस्टो क्या है। गांव का हर आदमी विलेज मैनिफेस्टो के बारे में जाने, उसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज हो और उसके दिल और दिमाग में विलेज मॉडल विलेज घुस जाए, बैठ जाए, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट करने लगे, ओनरशिप करने लगे। हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, तो जो गांव में अच्छे लोग होते हैं उनको हम लोग पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर उनको ट्रेंड करेंगे और उनको चेंज मेकर बनाएंगे, जो ड्राइव करेगा गांव को मॉडर्न गांव बनाने में। और तीसरा पार्ट है, हर गांव में एक एफपीओ हम लोगों को बनवाना है। उसका मकसद यह है कि गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना है। एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपनी चाहिए, तो एफपीओ एक कंपनी है ना। राघवेंद्र थोड़ा पहले ही चला दिया करो क्योंकि डिले है इसमें। जी सर। तो ये जो पीओ जो है वो गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये है देखिए विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो क्या करेगा, गांव के विकास का मतलब एजेंडा स्थापित करेगा। जैसे जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो क्या करते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं एक पेज में अपना फोटो हमें वोट दो हम आपको ये देंगे, एक लीफलेट लेके आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारा भी अभी हम आगे दिखाएंगे, एक पेज का एक लीफलेट है और हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस चीज का, गांव के विकास का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जब गांव के विकास का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए एक प्रचार का मटेरियल चाहिए, वो है लीफलेट के रूप में विलेज मैनिफेस्टो। इसमें 25 पॉइंट है। नेक्स्ट, और वो जो है उसी को सबको पढ़वाना है, बताना है। देखिए खेती सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे अच्छा उद्यमी है, ये भी हम लोगों का मानना है। तो विलेज मैनिफेस्टो क्या करता है, क्या करेगा, गांव और गांव के लोगों को धनी बनाएगा, सभी लोगों का अपना रोजगार हो जाएगा, गांव छोड़कर लोग बाहर नहीं जाएंगे, मॉडल गांव बनेगा तो गांव का पूरे देश में विदेश में इज्जत होगा, सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे और लोग मजबूत होंगे। गांव की गरीबी और बेरोजगारी को कम करना चाहता है। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, गांव के गरीबी और बेरोजगारी को कम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है मॉडल गांव का। राघवेंद्र तुम चलाते रहो, ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ाते रहो राघवेंद्र। तो ये विलेज मैनिफेस्टो हमारे यहाँ जब हम लोग कहीं कोई काम करते हैं तो माहौल नहीं बनाते, सीधा काम करने लगते हैं। इसकी वजह से वो काम नहीं होता है या होता है तो कम होता है और फेल हो जाता है। तो हमें सबसे पहले गांव में माहौल बनाना है, वो काम विलेज मैनिफेस्टो करेगा। नेक्स्ट राघवेंद्र, दूसरा पार्ट, इसका भी हम आपको ये लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कभी विलेज मैनिफेस्टो हम दिखाएंगे। उसमें विलेज मैनिफेस्टो में ये बोन चाइना के कप और शक्कर वाला चीनी ये सस्टेनेबल नहीं है। तो हमारा ये जो मॉडल है वो ऑर्गेनिक मॉडल है। अभी कोरोना में क्या हुआ, लोगों को काढ़ा पीना पड़ा, तो काढ़ा क्या है, वही पुरानी वाली चीज है, वही पुराने वाली दवाई। और हमारा जो ये है क्या, जो दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, वो काम नहीं आया महामारी में। तो कोरोना हमें ये सिखा के गया, चलो गांव की ओर। जो हमारी पहले हर्बल दवाइयां थी, हर्बल फूड थे, हर्बल चीजें थी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी। हमने अपनी अच्छी चीजों को खराब बताया और खराब चीजों को अच्छी बनाया। फिर गुड़ की चाय पियो। मैं पिछले 5 साल से गुड़ की चाय पीता हूँ, कुल्हड़ में पीता हूँ, नीम की दातून करता हूँ। नक्शेबाजी में हमने कॉलगेट शुरू कर दिया, मैं नीम की दातून करता हूँ क्योंकि मेरी बचपने से है आदत। तो ये जो चीजें हैं ये सस्टेनेबल, नीम का दातून सस्टेनेबल, कुल्हड़ सस्टेनेबल, गुड़ सस्टेनेबल, बोन चाइना का कप, ये जो चीजें हैं, शुगर जिसमें केमिकल होता है, ये सस्टेनेबल नहीं है ना टेस्टी है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमें कस्टमाइज करना है। ये देखिए घोषणा पत्र है और ये ऑनलाइन बनता है। अभी हम आपको ऑनलाइन बनवा करके दिखा देंगे
आपका जो हमारा मॉडल गांव का साइट है ये सब ऑनलाइन बनता है। अभी आप यहीं बैठे बैठे अपना फोटो लगाए बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। अब आप लोग स्टूडेंट हैं, इसमें प्रोफेसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कहेंगे हम कहाँ काम करेंगे, सब आदमी गांव से है। आपका अगर आप अपने गांव में काम करिए, अगर आपका गांव नहीं है तो आपके मामा काका नाना रिश्तेदार का गांव है, उनको समझाइए, उनके गांव को कन्वर्ट करिए, उस गांव के आप सोशल लीडर बनिए। अन्ना हजारे जी अपने गांव में डंपर ड्राइवर के रिटायरमेंट के बाद आए और उन्होंने मॉडल गांव बनाया और आज पूरे विश्व में फेमस हो जाए। तो मॉडल गांव का उद्देश्य है कि हर गांव में एक अन्ना हजारे पैदा करना है। नेक्स्ट चलो विलेज मैनिफेस्टो का आगे। तो ये जो विलेज मैनिफेस्टो है इसका ये इशू था, और विलेज मैनिफेस्टो में वो 25 पॉइंट है। पूरे गांव में ये पर्चा सॉफ्ट या हार्ड कॉपी बनवा के छपवा के प्रचार करके हर आदमी के दिमाग में 25 पॉइंट घुस जाए। दूसरा हमारा है चेंज मेकर। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हमें पता करना है, चयन करना है और इन लोगों को हम लोगों को ट्रेंड करना है। तो चेंज मेकर वह व्यक्ति होता है जो किसी सामाजिक समस्या का रचनात्मक तरीके से जो है समाधान देता। एक आदमी होता है तो कुछ नहीं होगा, पैसा लाओ तब होगा। एक आदमी होता है पॉजिटिव होता है, हर चीज को बड़े सहज तरीके से उसका समाधान निकाल देता है। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि वह अपने गांव में जो ये हमारा एजेंडा बनेगा पहले पेज पे, जो पहला पेज भी आपको दिखाया पार्ट 1 में, उसका वो प्रचार करेगा, लोगों को समझेगा और समझाएगा, ठीक है ना। और गांव के कार्यकर्ता के रूप में, गांव के एक सोशल लीडर के रूप में वो उभरेगा। हमें गांव-गांव में सोशल लीडर भी तैयार करना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि गांव को एक मॉडल गांव में कन्वर्ट से कई फायदे होंगे। उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। वहां कहते नहीं है इस गांव में कोई अच्छा आदमी नहीं है, तो वो जो कहते हैं नहीं नहीं इस गांव में बहुत अच्छे आदमी है, वही सोशल लीडर है। आपको मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये सोशल लीडर हम लोग होगा, और जो सोशल लीडर बनेगा, नेचुरल सी बात है कि उसके गांव में इज्जत बन जाएगी, वो वहां का एक सम्मानित व्यक्ति हो जाएगा, वहां के लिए वो उसकी इज्जत पूरे गांव में बढ़ जाएगी। तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है सोशल लीडर गांव का बनना, ठीक है। अब ये जो पार्ट हम लोगों का तीसरा है, ये पीओ क्या है। देखिए अभी क्या होता है कि गांव में खेती होती है, गांव में खेती कोई नहीं करना चाहता है, गांव में खेती कोई नहीं करना चाहता। क्यों? खेती घाटे का सौदा है। तो अगर हमें गांव में खेती के प्रति लोगों को का रुझान बदलना है, लोगों को खेती में लाना है, तो हमें उसे प्रॉफिट का सौदा बनाना पड़ेगा। We will have to convert loss making agri into a profit making agri business। तो इसके लिए हमें कंपनी चाहिए। गांव के लोग मिलके कंपनी बनाएंगे, गांव के लोग मिलके कंपनी चलाएंगे। आप ऐसे मानो कि गांव पूरा एक फैक्ट्री है और वो गांव का प्रीमाइजेस उस फैक्ट्री का प्रीमाइजेस है, और गांव के लोग उसके कार्यकर्ता हैं, उसी में नौकरी करने वाले लोग हैं और वही मिलके चला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो घाटे का सौदा है, जब तक हम इसे मुनाफे के सौदे में नहीं बदलेंगे तब तक हमें हमारे लोग, जो मैं आपको एक चीज बता दूं, जल जंगल जमीन जिससे कि हम लोगों का जीवन चलता है, मैक्सिमम लोग तीनों से दूर चले गए। कोई पौधा नहीं लगाना चाहता और पौधा लगाने को कोई विकास नहीं मानता। पानी कोई नहीं बचाना चाहता, पानी को बचाने को कोई विकास नहीं मानता। और जमीन में तो हमने इतने केचुए, इतने केमिकल डाल दिए हैं कि वो अनफर्टाइल हो गई, उसकी जो पैदा करने की शक्ति थी वो खत्म हो गई। तो जल जंगल जमीन, जिसको कि हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, इन तीनों चीजों के साथ हम लोगों ने खूब अन्याय किया, खूब इनके साथ एट्रोसिटीज करी, खूब इनको बर्बाद किया। अब ये जो कोरोना है, इसी हमारे इस जो हमारे कुकृत या कुकर्म कह लीजिए, या जो कहीं अच्छा काम हमने नहीं किया, उसी का ये वेकअप काल है। तो ये पीओ से धनी कैसे बने, इससे क्या लाभ होगा? देखिए हम लोगों ने कहा कि वो जब सब लोग इकट्ठा होकर जब समूह के रूप में बात करते हैं तो हमें रेट अच्छा मिलता है और इनपुट कास्ट घट जाएगी, है ना।
और कृषि उत्पादों का ये एकत्रीकरण होगा। जब हम थोक में कोई चीज सब लोगों ने इकट्ठा करके जब थोक में बेचते हैं तो पैसा अच्छा मिलेगा। तो ये एफपीओ के कुछ हम लोगों ने लाभ बताए हैं एक बार। और एफपीओ को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत सारे फंड दे रही है, क्या बहुत सारे फंड दे रही है। लेकिन ये पीओ का काम सुनने में तो आसान है, करने में कठिन है। क्यों? हम लोगों की आदत क्या है, गुप्पा चुप्पा 4 लोग मिलो कंपनी चला लो, ये नहीं चलेगा। इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहिए और इसमें कम से कम गांव के 300 मेंबर होने चाहिए, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, बिल्कुल खुला खेल होगा। तभी वो सरकार आपको पैसा जो देती है अनुदान के रूप में मिलेगा। लेकिन जिसने भी ये पीओ को अपना लिया, ये पीओ पे काम कर लिया, वो टाटा बिरला अडानी आडवाणी की तरह धनी हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इतनी अच्छी स्कीम है और इतना अच्छा इसका फायदा है। नेक्स्ट, तो ये जो हमारा ये पीओ है, मतलब ये जो हमारा मॉडल गांव है, मोटा मोटा इसका यही डिटेलिंग है, 3 पार्ट में है। और इसका जो आइडिया आया है, जब हम मादा में थे तो हम अगस्त 18 से लेकर के और फरवरी 20 तक हम लोगों ने वहां 20-22 प्रयोग किए। जेल नंबर 1 कर दिया, पानी बढ़ा दिया और अरहर सम्मेलन किया। वहां अरहर बहुत होता है मार्केटिंग करने के लिए। माल न्यूट्रिशन को घटाया, जेल को नंबर 1 किया। स्टूडेंट के लिए एक दिन, जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री है उसी तरह से एक दिन का अधिकारी एक प्रोग्राम लाए, एक दिन एक लड़के को डीएम बनाता था। तो इस तरह से जो 20-22 प्रयोग किए, उनका जो आउटकम आया उसको जब हम लोगों ने जोड़ा तो उसी का जो आउटकम है वही मॉडल गांव है। ये देखिए अभी कुछ अवार्ड भी मिले हैं। नेक्स्ट वन, और अभी रिसेंटली इनके जो है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन साहब हैं श्री राजू कुमार साहब ने, उन्होंने इसको ट्वीट करके बताया ये अच्छा काम हो रहा है और एक अच्छी पहल है और ये इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात ये मेरा ये मानना है कि ई फार्मर, ई एग्रीकल्चर, जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी में नहीं ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में नहीं ले जाएंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। देखिए ये वो है मॉडल गांव का जो नीति आयोग के ट्वीट पे उन्होंने तारीफ की थी श्री राजू कुमार सर ने। ये उसका जो है हम लोगों ने ये जस्ट टू आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ये आइडिया, ये काम इतना अच्छा है कि डे एंड नाइट लोग इससे जुड़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एडॉप्ट कर रहे हैं, लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, तुम चलाते रहो भाई राघवेंद्र। तो इन नट सेल मोटा मोटा मॉडल गांव ये है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि साहब हम मॉडल गांव से कैसे जुड़े, मॉडल गांव से कैसे जुड़े और क्या करें। तो मॉडल गांव से जुड़ने के लिए आपको देखिए इसके कई तरीके हैं। मॉडल गांव की आप साइट पे जाइए। राघवेंद्र आप जल्दी ये स्लाइड को चला के खत्म करके आप जरा वो बना के दिखाइए तो क्या। जी सर। हाँ, ये हमारी टीम है। और नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट जाइए, आपको बना के दिखाइए क्या विलेज मैनिफेस्टो। एक मिनट। अभी हम आपको दिखाते हैं कि विलेज मैनिफेस्टो हम लोग कैसे बना रहे हैं। ऑनलाइन बनाना है। ये जब तक बना रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे जुड़ना। ये मॉडल गांव की साइट पे आप जाइए, देखिए ये मॉडल गांव की साइट आपको अभी ये खोल रहे हैं। उसके बाद आप जाइए, इसमें 3 कॉलम है, विलेज मैनिफेस्टो में आपको जाएंगे। वहां जब विलेज मैनिफेस्टो में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि मेक जनरेट योर मैनिफेस्टो, और उसमें बहुत सिंपल सा डेटा मांगता है, नाम, मोबाइल नंबर, पता होता, और कहता है अपलोड योर फोटो। आप फोटो उसमें अपलोड कर दीजिए और सबमिट करिए, आपका बन के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आता है कि डाउनलोड योर विलेज मैनिफेस्टो, डाउनलोड करिए और आपका विलेज मैनिफेस्टो बनके तैयार फ्री में। तो हम लोग थोड़ा सा फ्री में कोई चीज मिल जाए, हमारे यहाँ फ्री लंच के हम लोग बड़े आदी हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट अब है तो है, हमारी गलत आदत बन गई है। वी बिलीव मोर इन फ्री लंच। देखो इन्होंने विलेज मैनिफेस्टो खोल लिया, आप देखो ये नीचे जा रहे हैं, देखो ये लाल लाल कर रहा है, कह रहा है आप विलेज मैनिफेस्टो
प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, साइट खोला, उसके बाद ये चले गए विलेज मैनिफेस्टो वाले सेकंड वाले में, और इन्होंने विलेज मैनिफेस्टो पे क्लिक कर दिया। अब इनसे वो डेटा मांग रहा है, आप बनाइए। देखिए ये डेटा मांग रहा है, भरो अपना, बनाओ अपना, तुम यही बना के दिखाओ। ये अपना बना के दिखा रहे हैं हमारे राघवेंद्र जी, है ना। आ तो गया तुम्हारा नीचे, उसको सब फिल है। हाँ, पहला वर्ड करोगे फिल है सर तो बन। हाँ। अभी आपको ये मॉडल गांव बना करके दिखा रहे हैं, सिंपल डाटा है, ये फोटो अपलोड करेंगे बन जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि गांव के हर आदमी को उसका फोटो लगा हम लोग विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे, तो जब उसको विलेज मैनिफेस्टो फ्री मिल जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। उसको फिर नुक्कड़ मोहल्ला मीटिंग करेंगे विलेज मैनिफेस्टो पे, और एक माहौल बनाएंगे कि गांव का हर आदमी, गांव का प्रत्येक आदमी अपना विलेज मैनिफेस्टो बना ले, और उसके माध्यम से उसे ये पता लग जाए कि विकास क्या होता है, कितने मुद्दे होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए इन्होंने फोटो अपलोड किया और ये सबमिट कर रहे हैं। तो अभी जैसे करेंगे, देखो विलेज मैनिफेस्टो बन के आ गया, देखिए बन गया। ऐसे कोई भी बना सकता है, नीचे ले जाइए, देखिए बन के आ गया, वही जो हम विलेज मैनिफेस्टो की बात कह रहे थे। हाँ, इन्होंने विलेज मैनिफेस्टो की जगह जो है ये अपना फोटो की जगह उसका फोटो लगा दिया, लोगो लगा दिया मॉडल गांव का, है ना, इसलिए वो मॉडल गांव का लोगो आ गया। ठीक है, अगर यहाँ लगाएंगे तो ये जो फोटो है, ये जो फोटो है, यहाँ ले जाओ कर्सर, ये फोटो, यहाँ आपका फोटो आएगा। आपने अपना फोटो क्यों नहीं लगाया भाई? सर ये ऊपर ही था तो चूज कर लिया सर इसको। नहीं, अपना फोटो लगा के दिखाओ। जी सर। अपना फोटो लगा के दिखाइए, उससे तो फिर दोबारा जाइए, दोबारा बना के दिखाइए, हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद डाउनलोड भी सिखाइए इनको। तो कहने का मतलब ये है, या मुनि जी का फोटो, जिसका किसी फोटो लगा दो, हमें तो उनको सिखाना, किसी जो फोटो किसी का लगा दो, चेहरा आ जाए तो अपलोड में जिसका करोगे उसी का आएगा। तो ये पूरी कहानी है मॉडल गांव का। और हम सभी का, जैसे मैं IAS अफसर हूँ, शहर में रहता हूँ, तो लेकिन हमारा गांव तो है ही है ना, कहीं कहीं हम गांव के लोग हैं, हम अपने गांव को मॉडल गांव बना रहे हैं। तो अगर आप मॉडल गांव, आपका गांव नहीं है तो आपके रिश्तेदारी में गांव होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो चीज आप जो है आपको करना चाहिए। तो मोटा मोटा ये मॉडल गांव है। और गांव की तरफ अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, खुशहाल जीना है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 4 पे एक अंशु माली द्विवेदी का स्टार्टअप का वो छपा हुआ है न्यूज। उन्होंने एक एग्री स्टार्टअप बनाया है, हमने उसको ट्वीट भी किया है, देखिएगा। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे साहब मैं अमेरिका में 15 साल रह के और फिर लौट आया हूँ, अब मैं यूपी के हर गांव में एग्री स्टार्टअप चलाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे लोग बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, उनके तो ये समझ में आ गया है कि हमें गांव की ओर चलना चाहिए, और वो गांव की तरफ आना शुरू कर दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव की तरफ मतलब चल के आ भी गए हैं, और हम लोग यहीं इंडिया में हैं और गांव की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये बात गलत है और इसका कोई समाधान नहीं है, हमें गांव की तरफ चलना ही होगा और चलना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कर रहा है फोटो। हाँ, वो इसलिए नहीं सेलेक्ट कर रहा क्योंकि तुम्हारे उस सेट पे ये जो है वो सेट हो गया, उसको देखना। ये फोटो आ जाएगा। अच्छा, आप ये डाउनलोड करके दिखा दो, नीचे आप अपना फोटो डालेंगे, आपका फोटो आ जाएगा। ये डाउनलोड देखिए, नीचे जो रेड का स्ट्रिप आ रही है, रेड, ये डाउनलोड है। हाँ, और इसके बाद ये डाउनलोड हो गया, देखिए डाउनलोड हो रहा है। हम आपको प्रैक्टिकली करके इसको दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग ऑनलाइन सभी लोग बनाइए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, या अपने ट्विटर पे या अपने सोशल मीडिया पे अपना घोषणा पत्र बना करके और जो है वो कर दीजिए। ये डाउनलोड हो गया जी सर। अब इसको शेयर करो व्हाट्सएप में। शेयर का आपसे कैसे शेयर करना है, तो कैसे होगा वो दिखा, बताओ। हाँ, क्या करना है? जी सर, एक मिनट। वैसे आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोगों का मैक्सिमम समय आजकल सोशल मीडिया ऑनलाइन ही रहते हैं, तो ये सब काम तो आप लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल है।
और ये बहुत अच्छी चीज कि हम लोगों के सामने ये समस्या आई कि मॉडल गांव इसको जो छपवाएगा विलेज मैनिफेस्टो पैसा लगेगा। और आजकल सबके पास जो है एंड्रॉइड फोन है और सबके पास नेट है, तो ऑनलाइन जनरेट, तो हम लोगों ने फिर इसको ऑनलाइन जनरेट किया। तो ये पूरी कहानी है इसकी, और ये पूरा मॉडल गांव है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री को आप लोग www.modelgaon.org पे आप जाइए। मॉडल गांव हम लोगों ने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है, उसको खूब पढ़िए। और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि मॉडल गांव को पढ़िए, इससे जुड़िए, इसका प्रयोग करिए। आप अपने घर को अपना घर एक गांव समझ लीजिए, आप अपना घर एक गांव समझ लीजिए और उसको मॉडल बनाइए। क्या लाइए, वहां जो है सब्जी पैदा करिए, ऑर्गेनिक फूड पैदा करिए, हरियाली पैदा करिए अपने घर के चारों तरफ, अपने छत पर। आप अपने घर को ही एक गांव मान लीजिए और उस पर ऑर्गेनिक, मतलब आप ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करके खाइए और आप जो है फ्रूट्स पैदा करके खाइए। मैं आपको बता दूं, मेरे छत पर बहुत बढ़िया जामुन लगा है, ऑर्गेनिक का हमने लगा रखा। हमारी पूरी खेती मेरे छत पे, हम सब्जी भी पैदा करते हैं। बहुत आसान है। अब कहोगे कैसे, अभी आप एक बार सोच लोगे, धीरे धीरे सब होने लगेगा। तो ये मुझे आपको मॉडल गांव के बारे में मुझे अनुरोध करना था, बताना था, और ये मॉडल गांव है मेरा आप लोगों से। इससे आप कहेंगे कैसे जुड़े, तो मॉडल गांव से जुड़ने के लिए आपको एक ही बात करना है, आप मॉडल गांव की साइट पे चले जाइए, वहां रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहली बात, सारे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात, तीसरा, ये जो अभी हम लोग विलेज मैनिफेस्टो देखो ये बना करके ये ट्रांसफर कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, इस तरह से आप अपना ये कर लीजिए। और उस गांव के अच्छे लोगों को का एक टीम तैयार करिए और उनका ऐसे बनवा के, उनके फोटो वाला बनवा करके और एक माहौल खड़ा करिए। और जब माहौल खड़ा करेंगे तो अपने आप रास्ता, फिर हमारा फिर अगला स्टेप, हम आप अगला स्टेप पे आपको ले जाएंगे। तो पहले स्टेप पे, बिल्डिंग इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट इन द विलेज, फॉर मेकिंग विलेज, फॉर कन्वर्टिंग विलेज इनटू ए मॉडर्न विलेज। ये पहला स्टेप करना है। जब एक बार माहौल बन जाएगा, पूरे गांव से एक ही आवाज आएगी कि ये जो 25 पॉइंट है इस पर हमें काम करना चाहिए, हमें अपने मॉडल गांव, अपने गांव को धनी बनाना चाहिए, हमारे गांव में हरियाली हो, हमारे गांव में पानी की कमी ना हो। ये सब माहौल एक बार जब बन जाएगा, फिर वो चेंज मेकर के माध्यम से हम लोग उनको ट्रेंड करेंगे और दे विल एक्ट एज ए ड्राइवर ऑफ द मॉडल गांव। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल गांव। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का टर्न है, और क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे मुनीष जी, मुनीष जी। यस सर। हाँ, सौरभ, क्वेश्चन आंसर आप टेकअप करिए आप ही। हाँ ठीक है, सर। चलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, प्रोफेसर सौरभ जी। यस सर, यस सर। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर, ये विलेज मैनिफेस्टेशन का जो मतलब एजेंडा आपने ले रखा है, ये चालू कब हुआ था, मतलब कितने साल लग जाएंगे पूरा होने में आपका? देखिए, क्या करें? विलेज मैनिफेस्टो क्वेश्चन पूछा है, जो आप मैनिफेस्टो जो दिए हैं, इसको एक मॉडल गांव में इम्प्लीमेंट करने में कितने टाइम लगेंगे? मतलब टोटल 7 to 8 लाख विलेज है इंडिया में, मतलब कितने साल लग जाएंगे? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ट्रिकी है। वी कैन स्टार्ट विद आवर ओन विलेज। पहले हम अपने विलेज को करें। ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि 6.5 लाख विलेजेस कब तक हो जाएंगे। उसका आंसर तो मुझको नहीं लगता है इज पॉसिबल, बट मैं अपने गांव को डेवलप कर सकता हूं। मैं अपने पीयर ग्रुप में लोगों को तैयार कर सकता हूं फॉर डेवलपिंग देयर ओन विलेजेस। दैट इज ए शॉर्ट टाइम एक्टिविटी। सारे विलेजेस को तो आप भी समझते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी पता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट आंसरेबल। मुनीष सर, एक हमारा क्वेश्चन था आपसे जी। हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर पीके सर का एक अपना विजन है, कनेक्टिव कम्युनिटी कनेक्ट।
कैसे जी सर। विलेज को जो कनेक्ट करके वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और जी सर। हीरालाल सर से इसलिए हमने रिक्वेस्ट भी किया था, जो हमारी कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम है जी उसमें सर। आपका मॉडल विलेज का जो मॉडल है और जिस तरीके से आप लोग करवा रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट हो सकता है और हमारे स्टूडेंट आपके इस प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं? जुड़ने का तो अभी हीरालाल जी बता रहे थे, वो प्रोसीजर जो उन्होंने बताया नहीं कि नहीं हमारी मुनि जी, वेबसाइट। ये वो हम लोग जो जी। इंटर्नशिप का टिस के बच्चों का जो हम लोगों ने उस, ओके, हाँ ओके, वही ओके। हमारा इनका इंटरकनेक्ट करने का बहुत बढ़िया बताइए। और टिस वाला जैसे हम लोग टिस से कनेक्ट। राइट सर। देखिए, मैं इसको इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों ने कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ भी टाई अप हमारा हुआ है, जिनके स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप के लिए एनरोल कर रहे हैं। लाइक जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन लखनऊ, अभी हमारी इरमा से बात हो रही है। वी आर इन डिस्कशन विद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जिनके स्टूडेंट्स को हम उनकी जो इंटर्नशिप होती है उसके लिए मॉडल गांव के साथ एनरोल करेंगे और उनकी इंटर्नशिप करवाएंगे। तो इस तरह से उनको बेनिफिट हो सकता है, जो डायरेक्ट बेनिफिट है। नहीं, आपके बच्चे भी देखिए, आपके बच्चे हमारे यहाँ इनरोल कर लें, हम लोग उनको मॉडल गांव के साथ करेंगे। वो जो भी गांव अडॉप्ट करेगा हमारे नॉलेज को, वो उस गांव में जिस गांव वो अपना गांव अडॉप्ट करे, अपने मामा का गांव अडॉप्ट करे, अपने नानी का, कुछ भी जहां भी करेगा। ये जो आपका कम्युनिटी कनेक्ट है ये बहुत बढ़िया है। यही हमारा जो है, अब हमारे पास टिस के 7-8 बच्चे मॉडल गांव से कर रहे हैं। इरमा वो जो गुजरात का, उससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। IIM अहमदाबाद में, अगर ये कोरोना ना होता, हम लोग IIM लखनऊ के 5 गांव थे, उसको लेके हम लोग खुद गए थे बैठक करने डायरेक्टर शुक्ला मैडम से। तो वो वाली जो फिलॉसफी है वहां हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सर अभी यूजीसी की एक पॉलिसी आई थी, एक्सटेंशन आउटरीच प्रोग्राम, जो हर एक यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट करे और आज के यूथ को गांव से कैसे जोड़े। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी कनेक्ट करना चाह रही है अपने यूथ को विलेज की तरफ। तो हमें ऐसा लग रहा है आपके मॉडल विलेज से बच्चे जुड़ेंगे और वहां से कुछ चीज फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी सॉल्यूशन भी ऊपर लेवल तक किया जा सकता नहीं है। देखो, जुड़ेंगे नहीं, सुनो सौरभ, जुड़ेंगे नहीं। चट्ट मंगनी पट्ट बिया, नो डिले। उनको तुरंत टिस का हम लोग 1 महीना से उनके बच्चे हम लोग 2 राउंड 3 राउंड का डिस्कशन हो चुका। हम लोगों का मॉडलिटी डिसाइड हो चुकी। और उनके जो टिस के प्रोफेसर एग्रीकल्चर सेंटर के बहुत अच्छा चल रहा, मतलब हुआ है। तो ऑलरेडी वी हैव डन दिस प्रोसेस। आपको केवल बस आप एक लिख करके हमें भेज दीजिए, हम लोग तुरंत उनको सर कैच एक कर लेंगे। आपके आपके मॉडल गांव के साथ हम लोग अपना एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन के अंदर हम इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल, आप वहां से आप सर्टिफिकेशन भी देंगे तो हमारे बच्चे के लिए इन फ्यूचर में अच्छा रहेगा। हम जी उसे जी। सर्टिफिकेट देंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसे एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। हम केवल दिखावे वाला काम तो, मतलब जैसे होता ना, हम भी इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप करके आ गए थे ओबरा थर्मल पावर में।